दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 281, 82, 281, 282 एंड 283 के बारे में। 200 कल मैंने पढ़ा था 280 आर्टिकल वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में कि फाइनेंस कमीशन की स्थापना क्यों की गई और उसके कार्य क्या हैं उसके बारे में बताया गया था। उसके कितने सदस्य हैं, उनको कैसे नियुक्त किया जाता है, उनके सदस्यों को, ये सब मैंने बताया था और उनके कार्य क्या हैं। अब मैं पढ़ूंगी 281 आर्टिकल। 281 आर्टिकल बात करता है वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में। वित्त आयोग की सिफारिशें क्या हैं? 281 article says about recommendations of the finance commission. Sorry. 281 article says about recommendations of the finance commission. The president shall cause every recommendation made by the finance commission under the provisions of this constitution, together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon, to be laid before each house of parliament. 281 article says recommendations of the finance commission. The president shall cause every recommendations made by the finance commission under the provisions of this constitution, together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon, to be laid before each house of parliament. 282 miscellaneous finance provisions, प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध, miscellaneous finance provisions. 281 article says expenditure deferrable by the union or a state out of its revenues. अनुच्छेद 282 कहता है एक संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले वे एक्सपेंडिचर. 282 article says about expenditure deferrable by the union or a state out of its revenues. The union or a state may make any grants for any public purpose, notwithstanding that the purpose is not one with respect to which parliament or the legislature of the state, as the case may be, may make laws. 283 article says about custody etc. of the consolidated funds, contingency funds and monies credited to the public. क्या कह रहा है? 283 article says about custody etc. of the consolidated funds, contingency funds and monies credited to the public accounts. 283 अनुच्छेद कहता है किसके बारे में? 283 अनुच्छेद बताता है संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि के बारे में. Number 1, the custody of the consolidated fund of India and the contingency fund of India, the payment of monies into such funds, the withdrawal of monies therefrom, the custody of public monies other than those credited to such funds received by or on behalf of the government of India, their payment into the public account of India and the withdrawal of monies from such account and all other matters connected with or ancillary to matters aforesaid shall be regulated by law made by Parliament, and until provision in that behalf is so made shall be regulated by rule
shall be regulated by rules made by the President. Number second, the custody of the consolidated fund of a state and the contingency fund of state. The payment of monies into such funds, the withdrawal of monies therefrom, the custody of public monies other than those credited to such funds received by or on behalf of the government of the state, their payment into the public account of the state, and the withdrawal of monies from such account, and all other matters connected with or ancillary to matters aforesaid, shall be regulated by law made by the legislature of the state, and until provision in that behalf is so made, shall be regulated by rules made by the governor of the state. अब मैं इसको हिंदी में देख लेती हूँ क्या कहा जा रहा है। अनुच्छेद 181, संविधान का अनुच्छेद 181 बताता है वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में। वित्त आयोग की सिफारिशें क्या हैं? राष्ट्रपति संविधान के उपबंधों के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध। अनुच्छेद 282, संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय। अनुच्छेद 282, संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय। संघ या राज्य किसी लोक प्रयोजन के लिए कोई अनुदान इस बात के होते हुए भी दे सकेगा कि वे प्रयोजन ऐसा नहीं है जिसके संबंध में यथास्थिति संसद या उस राज्य का विधानमंडल विधि बना सकता है। अनुच्छेद 283 बात करता है संचित निधियों के बारे में, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धन राशियों की अभिरक्षा आदि की बात करता है। नंबर 1, भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता निधि। भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा जो कस्टडी है वो किसके पास है उसकी बात करता है। अभिरक्षा ऐसी निधियों में धन राशियों के संदाय, उनसे धनराशियों के निकाले जाने, ऐसी निधियों में जमा धन राशियों से भिन्न भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त लोक धन राशियों की अभिरक्षा, भारत के लोक लेखे में उनके संदाय और ऐसे लेखे से धन राशियों के निकाले जाने का तथा उपरोक्त विषयों से संबंधित या उनके आनुषंगिक अन्य सभी विषयों का विनियमन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया जाएगा। यानी संसद के द्वारा बनाई गई विधियों के द्वारा इनकी संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों, लोक लेखाओं में जमा धन राशियों की अभिरक्षा की जाएगी। जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाएगा। जब तक इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया जाता तब तक क्या होगा, राष्ट्रपति इनकी अभिरक्षा करेंगे। नंबर 2, राज्य की संचित निधि और राज्य की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा। ऐसी निधियों में धन राशियों के संदाय, उनसे धन राशियों के निकाले जाने, ऐसी निधियों में जमा धन राशियों से भिन्न राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त लोक धन राशियों की अभिरक्षा, राज्य के लोक लेखे में उनके संदाय और ऐसे लेखे से धन राशियों के निकाले जाने का तथा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित या उनके आनुषंगिक अन्य सभी विषयों का विनियमन राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया जाएगा। और जब तक इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक राज्य के राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा इसकी अभिरक्षा की जाएगी। राज्यों की जो संचित निधि और राज्य की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा राज्यपाल करेंगे और संघ या राज्य द्वारा अपने और जो संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों, लोक लेखाओं में जमा धन राशियों की अभिरक्षा इधर कौन करेगा, राष्ट्रपति। जब तक इनके लिए अगर सरकारें
केंद्र की सरकार कोई उपबंध नहीं बनाती है, इनके लिए कोई कानून नहीं बनाती, तब तक राष्ट्रपति इनकी अभिरक्षा करेंगे और राज्यों के राज्यपाल इसकी अभिरक्षा करेंगे। तो ये बात कही जा रही है। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 284 लोक सेवकों न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ नए अनुच्छेद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू।